ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 24 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਯਾਨੀ ਕਿ UPS ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ UPS ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਫੀਚਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਵਿਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਫੀਚਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 60% ਹੋਵੇਗੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਸ਼ੋਰਡ ਮੰਥਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ DA ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਸਮ ਤੌਰ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 10% ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ NPS ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ NPS ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਜੇਕਰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 8% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਕੋਰਪਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖੁਦ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਭਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ NPS ਵਿੱਚ 18.5% ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੋ 10% ਕਟੌਤੀ ਸੀ ਉਹ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ NPS ਅਤੇ UPS ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ है। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ खुद देखो। जैसे हम लोग इतने सालों से ओल्ड पेंशन स्कीम OPS की डिमांड करते चले आ रहे हैं और आज का जो घटनाक्रम है जो हुआ है, जिसमें एक नया ये शगुफा मैं कहूँगा इसको कि एक नया शगुफा आ गया। NPS नहीं रहा, OPS भी नहीं रहा, अब नया आ गया UPS। तो UPS के बारे में पहले ऐसे समझें कि मैंने कई बार इस बात की आशंका भी जताई थी। कई बार मैंने अपने ट्वीट्स में फेसबुक पर लिखा था कि ये सरकार चूंकि नाम बदलने में बहुत माहिर है, आप सभी लोग जानते हैं इस बात को। नमस्कार आप सभी से, और जितना शेयर कर सके आप, मेरे ख्याल से आप सभी साथी एक बार शेयर जरूर कर दें। जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं शेयर कर देंगे तो बहुत सारे लोगों तक बात पहुँच जाएगी, क्योंकि आज मैं फ़ोन पे बताते बताते लोगों को मैं थक गया, मेरा गला ही चोक हो गया बात करते करते। तो ये जो UPS है यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, पहले आप लोग ये समझ लें कि अभी जितना कुछ सरकार ने इसको ओपन किया है, वो क्या ओपन किया है वो मैं आपको बता दूं। NPS चलता रहेगा। पहले तो ये समझ लीजिए कि NPS बंद नहीं होने जा रहा, ये चलता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 10% जो कट रहा है वो कटता ही रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है, वो कटता रहेगा। सरकार जो 14% डाल रही है, यहाँ पर एक बदलाव कर दिया उसने, 14% को बढ़ा करके उसने 18.5% कर दिया है। यानी कि आपका 10% कटता रहेगा और सरकार अब 14% की जगह आने वाले समय में 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। टोटल हो गया 28.5%, 10% आपका और सरकार का 18.5% यानी 28.5% हो गया। अब मुद्दा ये है, सरकार ये कह रही है कि जो UPS होगा यानी जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम होगी ये ऑप्शनल होगी। एक तरह से ऑप्शनल इसलिए कि जो लोग OPS की डिमांड कर रहे हैं, वो उसका ये कहना है कि जो लोग OPS की डिमांड कर रहे हैं
तो ऐसे समझ लीजिए कि ओपीएस का नाम उसने बदल करके यूपीएस कर दिया। अब एनपीएस में क्या था, रिटायरमेंट पर टोटल कार्पस का 60% आपको इन हैंड देते थे और 40% की एन्युटी खरीदनी पड़ती थी। तो जो लोग एनपीएस में बने रहना चाहेंगे वो ऐसे ही चलता रहेगा, उनको 60% मिल जाएगा और 40% की फिर वो एन्युटी खरीदेंगे, यहां कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जो साथी एनपीएस की जगह यूपीएस में जाएंगे, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में चले जाएंगे, उनके साथ कुछ चीजें बदल जाएंगी। यूपीएस में जाने का मतलब है कि ओपीएस की डिमांड, यानी यूपीएस में आप इसलिए जा रहे हो क्योंकि आपको ओपीएस चाहिए, और ओपीएस चाहिए तो उसके लिए उन्होंने 2 शर्तें लगाई हैं। पहली ये शर्त कि आप यूपीएस में आपको तभी कंसीडर किया जाएगा जब आपकी नौकरी को वो उनका एक मिनिमम क्वालिफाइंग जो एरिया तय कर दिया है मिनिमम सर्विस का, वो 25 साल तय किया। मान लीजिए कि अगर आपने यूपीएस ऑप्ट कर लिया, एनपीएस से आपने यूपीएस में स्विच हो गए, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो ये देखेंगे कि आपकी नौकरी 25 साल की हुई, अगर हो गई है तो आपको वो ओपीएस की पेंशन देंगे। ओपीएस की पेंशन का मतलब ये है कि अंतिम वेतन का 50%, जिसमें बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस होगा। बहुत सारे साथी अभी सवाल भी लिख रहे थे कि डीए होगा कि नहीं होगा, तो डीए होगा, उसमें वो इंडेक्सेशन लगाया हुआ है, सरकार ने साफ साफ कहा है। अभी जो लेटर भी उन्होंने निकाला है उसमें भी साफ साफ लिखा है कि इंडेक्सेशन होगा, यानी कि अंतिम वेतन का 50% प्लस डियरनेस अलाउंस जैसे जैसे बढ़ेगा वो आपको पेंशन मिलेगी यूपीएस में। लेकिन इसके एवज में, इसके बदले में सरकार आपसे एक चीज छीन रही है, और वो है जो आपका एनपीएस में 10% हर महीने कट रहा है, ये पैसा भी आपसे ले लेगी। अपना वाला हिस्सा तो ले ही लेगी, आपका वाला हिस्सा भी सरकार मांग रही है कि वो भी पैसा सरकार रख लेगी। इस बात के लिए क्योंकि आप 50% की आपको ओपीएस वाली पेंशन चाहिए। अब मुद्दा ये है कि वो पैसा सारा सरकार ले लेगी, आपका 10% भी ले लिया और अपना वाला 18.5% भी ले लिया, या जब 14% डला था या जब 10 के अगेंस्ट में 10 डला था, सारा पैसा सरकार ले लेगी और आपको उस पैसे में से आपके अंतिम 6 महीने के वेतन के बराबर निकाल करके वापस देगी। यानी आपने पूरी नौकरी उसमें 25 साल तक या 30 साल तक आपने हर महीने 10% जो सैलरी कटवाई वो सरकार ने ले ली, और उसमें से जो 6 महीने के बराबर आपकी सैलरी हुई, आखिरी के 6 महीनों की सैलरी, वो निकाल करके दे दी, जो 10% भी नहीं होगी आपके फंड का। तो ये उसमें सबसे बड़ी कमी है, और वो कभी भी ओपीएस का स्थान नहीं ले सकती। ये तो वही बात हो गई कि हम ओपीएस मांगने गए थे और हमारा पैसा भी उन्होंने हमसे छीन लिया। अब अंतिम 6 महीने का वेतन का तो कोई मतलब ही नहीं बचा। तो उससे ये, इसलिए इसके पीछे एक स्ट्रेटजी है, इसको समझना होगा। सरकार ये कहना चाहती है कि उसने अपना कंट्रीब्यूशन तो बढ़ा दिया, लेकिन वो ये कहना चाहती है जिनकी लंबी नौकरी है वो तो यूपीएस में जाएंगे ही नहीं। ऐसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो थोड़ी देर के लिए ब्रेक हो गया था। देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हैं जो लंबी नौकरी करते हैं 30 साल 32 साल 33 साल तक, और डे 1 से उनका पैसा कटता है, वो कभी भी यूपीएस में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको यूपीएस से कोई बेनिफिट नहीं, सारा कॉर्पस चला जाएगा। रिटायरमेंट के बाद ये तो कोई गारंटी होगी नहीं कि आप कितने दिन तक जिंदा रहेंगे, इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है। तो कोई भी यूपीएस में नहीं जाएगा। हाँ, एक बात मैं मानता हूं कि जैसे राज्यों में जो कर्मचारी हैं जो केवल 25-26 साल की नौकरी करके रिटायर हो जाएंगे, और खास करके वो कर्मचारी जिनका राज्यों में 10-12 साल तक 13 साल तक एनपीएस का पैसा काटा ही नहीं गया है, चूंकि काटा नहीं उनका पैसा तो सरकार ने भी अपना कंट्रीब्यूशन नहीं डाला, तो उनके साथ, उन लोगों के साथ क्या होगा कि उनके पास कॉर्पस बहुत कम होगा, तो उनको वो कॉर्पस हैंडओवर करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उनके पास हो गई 10-15-20 लाख रुपए। उस 10-15-20 लाख रुपए में से उनका तो कॉर्पस 10 लाख से कम ही होगा, और उसमें भी उन्हें 6 महीने की सैलरी मिल जाएगी, तो वो 4-6 साल का कॉर्पस बचा उनके पास, तो उन लोगों को वो कॉर्पस देने में दिक्कत नहीं आएगी। तो उनके लिए तो ये यूपीएस बेनिफिशियल हो सकता है, खास करके वो कर्मचारी, जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनके यहाँ 10 साल 15 साल उनको नौकरी करते हो गया, लेकिन उनका एनपीएस का पैसा नहीं कटा। ठीक है, थैंक यू। तो
तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ऐसे कर्मचारी जो राज्यों के हैं, जिनकी 10 साल 15 साल तक एनपीएस का पैसा कटा ही नहीं और वो 25 साल की नौकरी करके रिटायर हो जाएंगे, तो उनके केस में तो ठीक है कि उनको ओपीएस मिल जाएगी पैसा हैंडओवर करने के बाद, और 6 महीने की तनख्वाह उनको मिल जाएगी, तो उनके लिए तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बाकी जो लंबी नौकरी करने वाले साथी हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हों, उनके लिए यूपीएस किसी काम का नहीं है। ये उल्टा पुल्टा पेंशन स्कीम है, इसका कोई मतलब ही नहीं। इनको यही नहीं पता है कि एक तो ये बात आप समझिए कि अगर कोई कर्मचारी बीच में मर जा रहा है तो उसके परिवार को पुरानी पेंशन भी मिलेगी और उसका पैसा भी मिल जाएगा, और वही आदमी 30 साल नौकरी करेगा तो सारा पैसा छीन लोगे। तो इनको खुद ही क्लैरिटी नहीं है ये बना क्या रहे हैं। जो मैं तो कहूंगा कि टीवी सोमनाथन जी, थोड़ा सा आप एनपीएस को पढ़ो, थोड़ा आप ईपीएस को पढ़ो, थोड़ा आप सीपीएफ को पढ़ो, थोड़ा आप ओपीएस को पढ़ो, तब ना समझ पाओगे कि कर्मचारी की डिमांड क्या है। आपको तो पता ही नहीं है कुछ। आप उसी एनपीएस कर्मचारी को डेथ के केस में उसके परिवार को फुल पेंशन दे रहे हो ओपीएस वाली, और उसका पैसा भी दे रहे हो, और उसी कर्मचारी की जिसकी मौत नहीं हो रही बल्कि वो 30 साल नौकरी कर रहा है उसका सारा पैसा हड़प कर रहे हो। ये तो मतलब इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है। मैंने कई बार रिक्वेस्ट भी की भारत सरकार से कम हम लोगों को उस रिप्रेजेंटेशन मंडल में, डेलीगेशन में रखिए जो एनपीएस से पीड़ित हैं। आप उन लोगों को रखते हो जो इससे पीड़ित ही नहीं है। मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत बैर भाव नहीं है, लेकिन जाके पाँव ना फटी बेवाई सो का जाने पीर पर आई, उनको कहाँ से पता होगा। जो साथी लिख रहे हैं कि जैसे कुछ लोगों ने अभी लिखा था कि ग्रेच्युटी मिलेगी, इसका ग्रेच्युटी से कोई लेना देना नहीं है। ग्रेच्युटी तो वैसे ही मिलती रहेगी जैसे मिल रही थी, और लीव इनकैशमेंट भी मिलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दिक्कत केवल इतनी है कि आपका 30 साल का या 25 साल का जो इकट्ठा कॉर्पस है वो सारा ले लेगी यूपीएस के नाम पे या ओपीएस के नाम पे कह लीजिए। तो ये हमको बिल्कुल भी मैं तो कहूँगा कि ये बिल्कुल भी हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें हमारा पैसा रिटायरमेंट पर ब्याज सहित चाहिए, जैसे कि जीपीएफ मिलता था। हम उस पर पूरी तरीके से रिजिड हैं और यूपीएस का पूरी तरीके से हम उसके खिलाफ हैं, क्योंकि हम अपना पैसा सरकार को क्यों दें। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि रिटायरमेंट पर हमें ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी दे। अगर आप ओपीएस का आपको नाम बदलना है तो चाहे यूपीएस रखो, एनपीएस रखो, टीपीएस रखो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें व्यवस्था वही चाहिए। हमें पता है ये लोग नाम बदलने के बहुत माहिर हैं, नाम बदलते रहेंगे, लेकिन हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हमारा पैसा ब्याज सहित हमको रिटायरमेंट पे नहीं मिल जाता है। और जितनी नौकरी पर जितनी पेंशन की गारंटी थी जिस राज्य में, उतनी पेंशन नहीं मिल जाती है, तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं। तो ये हमारी तरफ से आज क्लैरिफिकेशन था। बहुत ज़्यादा आज बात नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। हो सकता है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर दीजिए आप सभी साथी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी। कुछ फ़ोन अभी भी आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनसे भी बात करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का कि इतनी रात में भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन पर आप लोग आए और जुड़े। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पुरानी पेंशन हक है, हम उसे लेकर के रहेंगे।